Yes, speak up. So, okay, today we'll start our session. And how many of you want to present their PPT of Unit 1? How many of you ready? Ma'am, I'm Aniket Mahamuni. Yes, Aniket. Yes, I present my PPT. Okay, okay, very nice, beta. Anyone? Yes, Umakan, would you like to present PPT? Yeah, Aniket, we have completed our lectures, and after 15 minutes, Okay, ma'am. then you have to present. Okay. Yes. Okay, Anyone? ma'am. Anyone? Yes, Sarthak, where are you? Why you not present your PPT? Sarthak, just unmute yourself and speak up. Okay, we'll share our PPT. After this, completing this unit, we'll studied a case study of decision making. 2 case studies we are sharing with you, and we discuss. Okay. So that day we have seen some kind of decision makings. Okay, we just revise what we have learned in decision makings. So some kind of decisions, rational decisions, and we have seen some models, Simon models. Okay, then contingency models of decision making, how to improve our decision makings, how to take general decisions and how to follow it, how to make a plan and how to achieve and how to work it, which steps we have to use to fulfill our make decision making. Okay, to fulfill our plan, how to create you. Okay, so have you seen my PPT, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, very good. And am I audible now, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. Next, uh, then we have seen some kind of advantages and disadvantages of group decision makings, how to management participate it, and how they just bombarding you. Yes, you want to do this, you want to do this. Lot of work pressure they have created uh, on their employees and their staff, and staff leaders, team leaders have encouraged and motivated their teams to fulfill their tasks always, right? So there are also two three models. If you don't have an idea, if any kind of task you have given and you don't have an idea, so that time you read some kind of model, some kind of theory, and then you implement your task on that particular way, so your task is finished and you learn a lot of things. And next time if you get that kind of task, definitely you will do within a second, within a minute, or within an hour, because you know how to do it, right? So always solving your problems in group, because your work is not your, it's an organization work, it's a team work. If you are not able to solve this problem, so discuss with your team, discuss with your HOD boss, and sort out the solutions, right? So that also we have seen. Then rational models, what it is exactly. So we have seen like that in rational models we need to identify first problem, what is exactly the problem, what is exactly the case. Okay, when we study case, so we read carefully, one time, two time, three time, then we identify what is the problem exactly, right? And then we have given some kind of solutions, whatever thought comes in our minds when we read any kind of book, any kind of story, any kind of novels. Okay, and we have eager to, if I love to read a suspense novel and horror novel, a lot of things. So we need, we are eager to learn, and we try to finish, or we try to what we say ki,
हम कोशिश करते हैं कि वहां तक पहुंचने की, ताकि हम जल्दी से उस चीज का पता लगा सके कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, okay, what is crime exactly. So in organizations, whatever the task you have, you just find the problems and you solve on your way. If you have a good skill, if you have a good knowledge to solve it, then you have to use your own knowledge, your own skill to solve this problem. Got it? Then you have a lot of alternative solutions. You have selecting any one solutions and try it and implementing and sort out any kind of problem. So that is the rational models of decision making. So lot of models we have, but whatever the study in syllabus, we just focus on it. Okay. Then we have seen Simon's model, and he said like that ki you have to know a limited information process, and then you have to judgment, you own judge on their problems, what is exactly, what is rule, what shortcuts, what long cuts, and how you fulfill in time bounding. Okay, so time period is most important in Simon's model. Okay, now next judgmental, and we have seen lot of criteria, whatever the criteria we have seen in decision making. So we elaborate one by one and seen what exact happened. Then judgmental heuristic, we have seen some kind of effective knowledge you know about. If you are a HR person, so definitely you need to know all basic knowledge of HRs and all good trainings of HR, so you have solved any kind of problems. If you are a finance person, then you need to know everything of finance, especially basic things, and then you implement whatever you learn, and you have to fulfill your task. Any kind of wherever you work, so you have to make an expert. हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब हमें प्लेस होते हैं, जब हमें जॉब मिलता है, तो हम क्या करते हैं एग्जैक्टली कि हम उस काम को सीखते हैं, है ना, लर्न करते हैं. एंड जब हम लर्न करते हैं तो लॉट ऑफ मिस्टेक्स भी हमसे होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर एंड आप सीख रहे हो, तो मिस्टेक से ही इंसान सीखता है. ऑलवेज कीप इन योर माइंड. ओके, बट सोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिस्टेक्स की भी एक लिमिट होती है कि कितनी करनी चाहिए, राइट? फर्स्ट सेकेंड, बस वो 2 मिस्टेक्स सफिशिएंट है आपको आगे और सीखने के लिए, राइट? So knowledge भी important है. If you have a good knowledge in your particular area, so definitely you are fulfill your tasks on time, and you also cooperate to others, your colleagues and staff, to their work. Okay, then general decision making styles, we have seen how we connect the people, how we interact the people, how we concern the people to solve their problem, to discuss their problems. Okay, so it's really controlling task. Okay, first you have to finish and then you have to support to others, so it's a controlling task, and a lot of technical problems are arises, but we have to be stubborn and solve it. Okay, then we have seen some kind of styles, that is the tolerance for ambiguity. when एक पिकअप का पॉइंट आ जाता है ना, जब बहुत बड़े इस पे आप काम करते हो, जैसे मैनेजर लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको छोटे मोटे काम करना नहीं, लॉट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग्स यू हैव टू टेक ऑन द विद इन सेकंड, विद ये आ गया, वो आ गया, इसका पेमेंट करना है, उसका. सो ऑल यू नीड टू स्टडी मोर एंड मोर एवरी डे यू नीड टू एवरीथिंग, यू स्टडी एवरी डे कि ये आज इसका ये है, वो है. सो ऑल थिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि आज क्या क्या हो रहा है. एंड सॉरी, don't be hesitate, solve the problem. Yes, you have to solve this, you have to, means since 10 a.m. you have to report in your offices, you are, and after 6 p.m. you just working. Yes, this happened, you analytical, conceptual, directive, behavioral, all kind of problems you have to solve. But the task technical concern is like that, analytical and directive, and social concern is conceptual and behavioral. Okay, so you just keep in your mind ki both kind of tasks are here, high level task and low level task, which is called value orientations. Okay, it's most important.
Then we have seen some questions. I asked you all questions. What is analytical and conceptual and behavioral decision making? Okay, but no one said like that कि yes, everyone have. मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब यूनिक है और सबका काम करने का तरीका, सबका काम करने का स्टाइल, चलने उठने बैठने का सबका डिफरेंट है. ओके हमें किसी से भी कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. यू आर अ यूनिक. ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि यस आप यूनिक हो, यू आर टैलेंटेड. इसीलिए तो आप एमबीए कर रहे हो और एमबीए से भी बहुत कुछ सीखे. उस वट एवर यू लर्न यू हैव टू यूज इन योर ओन वर्क. You have to create your own style. You have to speed your work. You have good communication skills. Lot of things you have to learn. Okay, so किसी के भी साथ कंपेयर मत, क्रिटिसाइज मत करो. किसी कोई अगर बोलता है कि ये तुम गलत करते हो, गलत और डोमिनेट करता है, तो जस्ट थिंक पॉजिटिव कि ये मुझे डोमिनेट नहीं कर रहा है, ये मुझे प्रिपेयर कर रहा है, ये मुझे तैयार कर रहा है कि मुझे सुधरना है और मुझे मिस्टेक नहीं करनी है. राइट. सो डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी डोमिनेटेड. अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो जस्ट थिंक पॉजिटिव. ही इज योर गुड फ्रेंड. क्योंकि जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो ऑलवेज क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी कमी ढूंढ कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं. गॉट इट. So be aware about it and just change yourself day by day. Learn lot of things. Do everything whatever you want. Okay. But good things always. Then we have seen some escalations of commitment. Yes, in your decision making, commitment is most important. If you committed कि you have to submit your tasks on that day, then you should submit on it. If you have some kind of problems, if you face or some technical issues or any kind of issue, you should not submit it on time. So you just tell him before 2 days, yes, that kind of problem is here, so we could not submit. We'll submit on that day. Again, you have to commit ki yes, we have to submit today, tomorrow, day after tomorrow, whatever. But whatever you committed, you have to fulfill. Yes, I know every time it's not possible to fulfill our commitment on time, but reporting is the most important. No communication gap. Okay, in your organization, with your teamwork, with your boss, with your seniors, colleagues, no communication gap. What work you have to report it him. Yes, इतना हुआ है, इतना होने का है, ये कल होगा या परसों होगा. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो you just discuss with him or her कि yes ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ. Got it? So there is a lot of commitment. We have seen psychological, social, right? Then how to achieve. We have seen long terms of projects, short terms of projects, and all. Okay. Anyone want to ask questions? ये हमने यूनिट 4 का क्राइटेरिया है जो देखा था. अभी मैं आपको कल यूनिट 3 और यूनिट 4 का पीपीटी दूंगी. आज अगर आज शाम तक होता है तो आज शाम तक ही मिल जाएगा, लेकिन कल आपको दोनों भी पीपीटीज मिल जाएंगे. ठीक है. Anyone want to ask any questions regarding this? Okay. So this is skill based practice and recommendations to reduce escalation of commitment. If you committed anyone, so how we practice to fulfill it, how we practice to recommend it, and how to reduce any kind of mistakes if you did often and often. Okay. Here they said like that, if set minimum target of performance and have decision makers compare their performance with this target. Always you just keep in your mind you have to submit this work today on, it means today, tomorrow means tomorrow. हमें क्या कहा जाता है कि अगर हम हमारा काम रोज का काम रोज करते हैं तो हम उसे अच्छे से कर सकते हैं, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा जाता है. हमारे टीचर्स भी हमें यही बताते थे, मतलब मेरे तो टीचर हमें बताते थे कि रोज की पढ़ाई रोज करो. इवन माय फादर ऑलवेज जब भी हम स्कूल से आते थे तो हमें लेके बैठते थे कि नहीं आज जो पढ़ाई की है आज ही कंप्लीट करना है, सोने ही नहीं देते थे वो. सो दैट्स अ वेरी गुड हैबिट कि उन्होंने उस वक्त हमसे वो सब करवा लिया. अभी तो आप लोग सुनेंगे ही नहीं मम्मी पापा के, उनको तो कोई, लेकिन फिर भी खुद की हैबिट लगाना सीखिए कि रोज का जो भी काम है ना उसे कंप्लीट कर, बिल्कुल मत अवॉइड करिए. राइट. सो
organization में भी whatever the task you have ना, you just fix the target and you just finished on that particular time. मत रखिए उसे पेंडिंग. उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका वर्किंग स्टाइल अच्छा होगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा, है ना. जितना ज्यादा आप काम में इन्वॉल्व रहेंगे, जितनी ज्यादा बुक पढ़ेंगे, जितना ज्यादा स्टडी करेंगे, जितने ज्यादा पीपीटी, जितना ज्यादा यूनिट, जितनी ज्यादा ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, उतना ज्यादा आपका आईक्यू, आपका ब्रेन क्या होगा, स्ट्रांग होगा. अभी तक आपने उसे सो के रखा था, बट उसे जगह उसे सोने मत दीजिए. ओके, जस्ट वर्कआउट. अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे ये करना है, ये लेक्चर में मुझे ये पढ़ना है, ये ऑलवेज वर्कआउट, ऑलवेज उसे कंटिन्यूअसली भगाओ. राइट, मोटिवेट करो उसे कि नहीं तुझे करना ही होगा, सोना नहीं है, करना ही है. आप अपने लाइफ का एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि 25 to 30 मुझे सेटल होना है, बस 25 to 30 मेरे पास ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है. अगर ऐसा टारगेट आप दिमाग में रखेंगे तो व्हाटएवर, फटाफट फटाफट आपका स्पीड देखो कैसे बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस देखिए कैसे बढ़ता है, डे बाय डे, डे बाय डे. जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपके सामने आते हैं आपके फ्रेंड्स के, बस तुरंत सॉल्व करिए. ओके, बाद में देखेंगे, ओके ये इसका इसका ऐसा सॉल्यूशन है ऐसा. सो कीप प्रैक्टिस, because based the practice increase your skill, increase your knowledge, increase your confidence, increase your body language, and increase your personality. And that personality, if you really have a good personality, then definitely कोई भी आपको मैनेजर बनने से, लीडर बनने से नहीं रोक सकता. क्योंकि लीडर्स क्या करते हैं, ऑलवेज मोटिवेट करते हैं, ऑलवेज वर्क करते हैं, ऑलवेज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. Right? Then have different individual make the initial and subsequent decision about the project. If you are working in any kind of project, sorry, so on that project you just think about it. Yes, आज ये करना है, उसके बारे में सोचिए, पढ़िए क्या क्या चाहिए, what kind of initials, what kind of things you need to complete your project. Focus on it. अगर आपको बोला गया है कि आपको 10 तारीख को सबमिट करना है, तो यू जस्ट वर्क ऑन और ट्राई करिए कि 10 के पहले ही सबमिट होगा, 8 को या 7 को ही मैं फिनिश कर दूंगा. ओके, डोंट फॉरगेट कि you learn management. Okay, and if you really want to learn a good, yes, anyone want to ask any question? Hello, ma'am. Yes. Sorry to ask, but I want to ask something about Yes. a PPT. I was quite busy last since 15 days, so I am free now. So I am attending lecture also, but it is not 100% actively. So I It's want to okay. know. I want to know about what is the topic, and so that I can prepare a PPT. Any topic you need one. Okay, we have a lot of things we have learned, functions of management, what is management, manager versus leaders, leadership, any kind No. of topic regarding the unit 1 only. I just want to check your IQ, your personality, your way of talking, your body language. Okay, and you should present, just open your video. Okay, okay. Madam, I want to ask, I understand the topic of the PPT, but what we have to make in that PPT? Please explain. What you learn from unit 1? I will going to learn, I will read it thoroughly, and I will make PPT. Then on that basis, you have to make it. So different, you have to use your skill, now what you learn exactly. Okay, you just like started, good afternoon madam, good evening madam, I have just elaborate my unit 1. We learn that kind of things, and I'll really like the motive, whatever the functions of management. Really, Okay, I have to teach. No, you don't have to teach. You have to tell me what you which topic you would like most, and उसमें क्या अच्छा लगा आपको और क्या समझ में आया. Okay, you don't want to teach. You just explain. I am checking you कि your voice कैसा है, आप कैसे present करते हो, आपका communication कैसा है. Only that things we need to check. Okay. Got it, madam. Got it. Thank you, ma'am. So encourage decision makers to become less ego involved in a project. Yes, if you are working a teamwork, so you just
keep your ego outside. Okay, don't show your ego. Always work friendly. Okay, don't show you are good, or you are a good performer or what. You don't show. You just work on your project. Just focus on your date, whatever the date you have committed to your management, and you just fulfill it. Now reduce the risk of penalties of failure. Okay, yeah, don't worry. If you fail, don't worry. Okay, आज प्लान किया था, नहीं सक्सेस हुआ, don't worry. फिर से करो उसे, फिर से करो, but don't wait. फेलियर होना मतलब द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस इज फेलियर. अगर आप पहली बार फेल होते हो मतलब आप सक्सेस हो गए हो, बिकॉज यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट ना, है ना. अगर हमें से कोई चीज नहीं हो रही है, मान लीजिए, तो कोई बात नहीं. अगर आज आपकी फैमिली में मम्मा, आपकी मदर जो है वो ठीक नहीं है, शी इज नॉट फीलिंग वेल, और उसने बोल दिया कि बाबा आज तू ही खाना बना, है ना, तो उसे कितनी खुशी होगी, और वो आरा मतलब बहुत खुशी से खाएगी, बिकॉज आपने बनाया है. डजंट मैटर कि उसमें क्या कम है क्या ज्यादा है, बट शी हैप्पी, है ना. तो गलतियां होंगी ही ना, नहीं बनता है, किसी को आदत नहीं होती है, किसी को बनाना नहीं आता है, बट द थिंग इज लाइक दैट कि इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दे, या हम भूखे रहे, या हम खाए नहीं, है ना. तो रिक्स लेना सीखिए. ऑलवेज टेक अ रिक्स. यस मैं करूंगा, लाओ मैं करूंगा. और आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई बड़ी रिक्स लेते हैं ना, that means you learn lot of. Always say कि yes sir, मुझे दीजिए, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे सीखना है. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होंगे ना, नहीं सबमिट कर पाओगे, या टाइम पे नहीं होगा, बट यू शुड थिंक कि हाउ मच यू लर्न फ्रॉम दैट, right? So all are, I know a lot of people are giving their examples, share their examples, how they improve their self. Okay, so make mistake, no issue. और अभी आपकी एज ही क्या है, आप लर्न, जितना मिस्टेक करोगे उतना सीखोगे. ओके, डोंट फॉरगेट लाइक दैट कि टीचर्स योर सेकंड पेरेंट्स, है ना. जैसे मम्मा पेरेंट्स के आपको पता होता है आप घर में कैसे हो, उसे टीचर्स को भी पता होता है आप पढ़ने में कैसे हो. सो डोंट बी हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, इन फ्रंट ऑफ फैकल्टीज, हमें सब पता होता है. ओके, सो जितना आप ओपन माइंडेड बात करोगे, ओपनली सारी चीजें क्लियर करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है. उतने आप सीखोगे, उतने आप एक्टिव रहोगे हर चीज में, एवरीथिंग, राइट. नाउ मेक डिसीजन मेकर्स अवेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ परसिस्टेंस. यस, ऑलवेज you should know the, and you should aware about it कि what is the cost of persistence. okay? मतलब आप अपना टाइम भी देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो आपने टाइम निकाला है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. you should value your time, राइट. जितने भी बड़े बड़े फॉर एग्जाम्पल ऑथर्स, राइटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं. मैंने आर्मी और अदर्स पीपल का भी एग्जाम्पल दिया था, डिफेंस और ये एयरफोर्स वाले वगैरह जो पीपल्स होते हैं, वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग. नो 5 मिनट्स 1 सेकेंड भी वो लेट नहीं होते, एकदम पर्टिकुलर, बिकॉज दे वैल्यू द टाइम. उनको पता है कि 1 घंटे में मुझे इतना लिखना ही है, नो ऑप्शन, इतना करना ही है, और वो करते भी है, बिकॉज they habitual on that, right? So decision making is a big chapter, all students, so be careful about, क्योंकि ये जो decision makers making है ये आपके लाइफ में, आज आप पढ़ रहे हो बट पूरी लाइफ आपको बहुत बहुत काम में आने वाला है. अगर एक भी डिसीजन गलत हो जाता है तो आपको पता है कि क्या क्या हमें फेस करना होता है. बट नाउ डेज इट्स नॉट, पहले होता था, पहले के जमाने में इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं थे, राइट ना, कि हमें एक के ऊपर डिपेंड है. बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लॉट ऑफ ऑप्शंस वी हैव. सो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को क्या करो, पुश करो कि यस, पढ़ोगे तो ही आपको न्यू आइडियाज आएगी, डिस्कस करोगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे तो ही आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे, राइट. सो दैट इज मोस्ट. Now stages underlying the creative process. Creative process, so most important
एवरीवन इज क्रिएटिव, सबके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए होता है ना. सो दैट इज की preparation. What is actually preparation? Reflect the notion that creativity starts from base of knowledge, है ना. जब भी आप कोई काम करते हो तो उसे अच्छे से, मतलब एकदम, हम लोग बोलते हैं, एक बार बोला था किसी ने कि बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा था वो वर्ड यूज किया था आपने, अभी तो स्टूडेंट्स हो आप, बट होंगे भी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर्स, some family issues and all, we are too much frustrated, I know it, but just relax, okay. So preparation is like that कि you just prepare your mind always कि yes मुझे तो करना ही है, no option, okay, no option, करना है. And always think like that कि every problem has solution, every problem, okay. So जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, निगेटिव थॉट्स या वर्ड्स, नेवर यूज. जितना आप यूज करोगे ना उतना आप फ्रस्ट्रेट होंगे. इसलिए इफ जैसे भी ऐसा आपको फ्रस्ट्रेशन आता है या ऐसा आता, मतलब लगता है कि नहीं यार आज बहुत बोर हुआ, lot of things you have, listen some kind of music, listen some kind of musical instrumental music, meet someone, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए. एक 5 to 10 मिनट्स अपने लिए निकालिए एवरी टाइम. सो द फ्रस्ट्रेशन क्या है, निकल जाएगा, है ना. सो प्रिपरेशन मीन्स लाइक दैट कि ऑलवेज प्रिपेयर. जैसे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर होके जाते हो, इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर होके जाते हो, बट फुल टाइम फुल प्रिपेयर नहीं होते. वहां पे भी आपको डर रहता है, एकदम नर्वस हो जाते हो, क्या पूछेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना. तो और मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो भी फ्रेशर्स है ना, जिनको भी अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लीज अभी से कम्युनिकेट करना चालू करिए, अपने आप से टॉक करिए, मिरर में टॉक करिए एवरी डे. lot of thoughts, lot of ideas, lot of lectures have completed, units are completed, just prepare and in front, और अपने आप से बात करिए आईने में, अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करिए, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करिए. So it's really help you on the time of interview, right? So preparation skills is most important and it reflects your creativity. अगर आप पहले से prepare हो so definitely you present very well, है ना. जैसे आज क्या नाम है, अनिकेत ने बोला कि मैम मैं आज पीपीटी प्रेजेंट करूंगा, दैट मीन्स ही प्रिपेयर्ड वेरी वेल. उसने प्रिपेयर किया है, दैट्स व्हाई ही डेड कि मैडम मुझे प्रेजेंट करना है, बिकॉज ही प्रिपेयर. सो प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवेयर. जितना आपने प्रिपेयर किया है उतना आपका क्रिएटिविटी अच्छे से दिखेगा, आपका स्टार्ट, आपका एवरीथिंग. मैंने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे अपने लाइफ में कि जब भी वो कभी एंटर करते हैं तो इतना स्माइलिंग फेस उनका, वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, राइट. सो डेफिनेटली इवन स्टार्स, यू नो, शाहरुख खान जैसे आप देखते हो, उसका जो ये था सबको पसंद आता है. अमिताभ बच्चन, सबको पता है अमिताभ बच्चन का, आपने देखा है स्टाइल, जब भी वो ऐसे बैठते हैं तो एकदम कितना. सो आप वो कॉपी करते हो, राइट. प्रिपरेशंस जो भी है वो कॉपी, और खुद को वो अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो, दैट इज वेरी गुड. करो, बिकॉज आपको भी कुछ अचीव करना है, और अचीव करने के लिए प्रिपेयर होना होगा, और प्रिपेयर होने के लिए पढ़ना होगा, नॉलेज लेना होगा. गॉट इट. सो कॉन्सेंट्रेशन, ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क. कोई भी काम जो भी आप कर रहे हो पहले उसी पे फोकस करो. देन मुझे पता है आपके पास बहुत सारे काम है, सब काम में बिजी है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, काम करते करते लेक्चर अटेंड कर रहा है, कोई कहीं और बिजी है, कोई नोट्स बना रहा है, बट फोकस करिए. 5 मिनट्स 10 मिनट्स सफिशिएंट. जो भी पढ़ रहे हो ना 10 मिनट्स दो. अगर आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, अगर ग्रास्पिंग पावर अच्छा करना है तो एक्टिव रहो. लिसनिंग, ऑलवेज लिसनिंग. सबके पास फोन्स है, लॉट्स ऑफ वीडियोस, लॉट्स ऑफ मोटिवेशनल स्टोरीज आर देयर. डिसाइड करो कि एवरी डे बिफोर गो टू बेड और बिफोर अर्ली इन द मॉर्निंग, just 5 to 10 minutes you listen carefully. Then आप देखिए कि आपका कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही. कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन करिए एवरी डे 5 to 10 मिनट्स, और साथ ही साथ अच्छे लिसनर भी बनिए, अच्छी चीजों को सीखिए, मतलब लिसन करिए.
है ना, जिनका कम्युनिकेशन वीक है या जिनको और कुछ करना है. So that is more. So concentrations जो होता है, where an individual concentrate on the problem at hand. जिसका concentration अच्छा होता है, उसका problems easily solve हो जाता है. उसके हाथ में problems बहुत ही कम रहते हैं या फिर ज्यादा भी रहते हैं. मतलब जो फोकस करता है उसके पास, मतलब मैनेजर होता है तो मैनेजर बनना नॉट अ जोक ना, उसको बहुत सारी वेराइटी ऑफ टास्क रहता है, तो उसको फुलफिल करना होता है, एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालना होता है. नाउ इंक्यूबेशन. सो व्हाट इज इंक्यूबेशन? डन अनकॉन्शियसली. During this stage, people engage in daily activities, right? So while their minds simultaneously mull over information and make remote associations. Obviously ना, आप यहाँ लेक्चर सुन रहे हो, अभी lot of thought comes in your mind कि इसके बाद का लेक्चर क्या है, या कल मुझे क्या पढ़ाया था, घर में आज ये हुआ, शाम को ये खाना बनाना है, मुझे यहाँ जाना है. Lot of thoughts comes in your mind unconsciously, right? But एंड आप साथ साथ में आपकी सारी एक्टिविटी भी कर रहे हो, ये भी करना है वो भी करना है, मतलब आपका ब्रेन क्या कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, राइट? कि ये भी करना है, वहां भी जाना है, उसे भी बताना है, उसे फोन पे बात करना है, आज खाने में ये खाना, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको वो साइमल्टेनियसली दे रहा है, इंफॉर्मेशंस, है ना. आपको रिकलेक्ट करना है और उसे क्या करना है, फुलफिल करना है ऑलवेज, राइट? नाउ elimination. So remote associations from the incubation stage are ultimately generated. ये तो होता ही है, corporate में भी होता है, but everything, every time, whatever the instructions comes, whatever the thought comes, you just process it, don't be negative, and just happily solve any kind of problems. Okay, so remote area अभी तो सभी जगह remote area ही है, सब कैमरेज वगैरह सब लगाए हुए, सब आपको कोई नहीं देख रहा है, बट कैमरा आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे, कितने इसमें क्या कर रहे हो. सो बी cool and be patient, be aware about your surrounds, what happened. Verification. So entail going through the entire process to verify, modify, to try out the new idea. Always, whatever you work, whatever you submit to your boss, to your management, before that you need to judge your work, you need to check your, to verify it, कि they didn't found any kind of mistakes. Now group decision making, it's really important. Yeah. Whatever the data, whatever the things comes in your mind regarding any kind of assignments, if company said like that, nowadays budgets are going on, budget session is going on next month or in the month of middle of February. So आपको आया भी होगा शायद मेल ना, कि आपको ये सब बजट्स वगैरह सुनना है, सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलना है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू. सो ये सारे जो सेशंस होते हैं, तो इससे क्या होता है ना, डिस्कशंस. आपने देखा निर्मला सीतारामन जो है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जब प्रेजेंट करती है तो सबके सामने क्वेश्चंस रखती है, एंड ऑल पीपल्स आर डिस्कसिंग विद ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि यस इट्स हैपेंड एंड ऐसा होगा तो क्या होगा, एंड दे जस्ट saying like that कि okay, and then next day we have read the papers and some kind of solution, some kind of criteria, what they are improved, what they are not improved. Okay, all are mentioned. न्यूज़पेपर भी पढ़ी है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट हेडिंग तो भी रोज पढ़ी है, ठीक है. So whatever the data suggested, whatever the groups you have, whatever the teams you are working, so you need to discuss with them. If any kind of error, if you are not fulfill your work on time, so just discuss with them कि नहीं यार आज मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है. So any kind of problems you just discuss with them. Okay, so data suggested an innovative groups possessed high level of both minority dissent and participation in decision making. Always participate. Note 4 requirements of effective decision making in a group. What? Focus on process. Always. Understand requirements for an effective choice. What you choice? What you choose? Yes, ये मैं करूँगा या नहीं करूँगा, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा. You choose it. When you are involved in which work you would like, right? Assess positive qualities of alternative solutions. Always choose two choice. Yes, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा, ये नहीं हुआ तो. So always choose
और पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होने ही चाहिए। जैसे हम लोग खाने में रखते हैं ना कि अगर खाना पसंद नहीं आए तो हम बाहर जाके कुछ खा लेते हैं या फिर हमारे पसंद की चीज खाते हैं जो जिस, तो वैसे ही हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। Nowadays it's a digital era and lot of options we have because resources ही इतने सारे आ गए हैं। पहले नहीं था, पहले एक ही डॉक्टर सबको चेक करता था, सब डिसीज एक ही बता देता था। अभी तो एक्सपर्ट एवरी इसके एक्सपर्ट बन गए, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कोई भी डेंटिस्ट के यहाँ जा सकते हो, है ना। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को ही मतलब एज में आईज का प्रॉब्लम होने लग गया है। सबको सबको नंबर्स सब, मतलब कितने ब्रिलियंट हो आप, कितना स्टडी करते हो आप, सोचो पहले के बच्चे नहीं करते थे ना, अभी बहुत कर रहे हैं। सो दैट इज, मतलब ऑप्शंस है। अभी ऐसा कोई भी ये नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, मतलब उसे दिख नहीं रहा है तो ऐसा नहीं घर में बैठेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, चेकअप करेगा, चश्मा लगाएगा एंड देन वो स्टार्ट करेगा। तो मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपसे नहीं हो रहा है मैनेजमेंट दूसरे बंदे को हायर करेंगे, बोलेंगे इनसे नहीं हो रहा है भाई दूसरे को हायर करो, है ना। सो ऐसा मत होने दीजिए। यू हैव टू इम्प्रूव योर इनर क्वालिटीज। अगर आपको ये काम नहीं जम रहा है तो जस्ट स्टडी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, राइट। क्यों नहीं आ रहा है मुझे, मुझे क्या सीखना चाहिए अगर वो मुझे आना चाहिए, इसलिए दैट काइंड ऑफ थॉट कि यस मुझे ये करना है, मुझे ऐसे सोचना है। नाउ सजेस्ट ओपननेस एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेंट। ऑलवेज सजेस्ट करिए, या जो भी सजेस्ट कर रहा है उसको फॉलो करिए, एक्सेप्ट करिए कि यस आई वांट टू लर्न दिस, आई वांट टू डू दिस। नाउ नेक्स्ट, advantages and disadvantages of group aided decision making. So first we have seen some kind of advantages and that is greater pool of knowledge, है ना। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है। अभी मान लीजिए जैसे मैंने आपके साथ डिबेट का कॉम्पिट किया, या चलो हमें रखने ही वाले हैं हम लोग, तो आप लोग सब प्रिपेयर रहो और ग्रुप पे करेंगे हम लोग ये वाला जो डिबेट कॉम्पिटिशन करेंगे, हम ग्रुप में करेंगे। मैं आपको बताऊंगी इसका डेट। सो 4 पीपल का ग्रुप बनाना है, ओके। सो विल डिस्कस लैटर। सो क्या बताने वाली थी मैं, एक बहुत अच्छा आइडिया आया था, ग्रेटर पूल ऑफ नॉलेज। सो हाँ, जैसे हम लोग कोई डिबेट पे चर्चा कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। द पर्सन हु हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट, जैसे लीडरशिप पे एक बंदा है जिसे बहुत कुछ पता है और एक बंदा है उसे पता ही नहीं है, तो जो बंदे को पता नहीं उसे पता चल गया है कि भाई क्या होती है लीडरशिप, राइट। सो ऑलवेज शेयर योर नॉलेज। ग्रुप डिस्कशन मीन्स ऑलवेज शेयर, मोटिवेट योर पीपल कि यार उसे ये पता ही नहीं है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है, उसे कभी गया नहीं कॉलेज में। सो ऐसे लोगों को डीमोटिवेट मत करिए, उन्हें लेके चलिए। ऑलवेज आपका जितना आप शेयरिंग करेंगे उतना आपका नॉलेज क्या होने वाला है, इंप्रूव होने वाला है। इसलिए मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि बनाओ पीपीटी, प्रेजेंट करो। आपको ये जो मिला है ना अभी प्लेटफॉर्म, वो बार बार नहीं मिलेगा। आप ही के अपने स्टूडेंट्स है, आप ही के अपने फ्रेंड्स है जो सुनेंगे आपको। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो आपको इम्प्रूव करने के लिए बोलेंगे, बट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ कि यस यू आर अ गुड इन दैट। और आजकल तो हम मैनेजर्स हो या कहीं भी हो, आपको तो डिजिटलाइजेशन होने से प्रेजेंटेशन तो इम्पोर्टेंट ही होता है। विदाउट प्रेजेंटेशन वो तो आपको लेंगे ही, प्रेजेंट करना ही पड़ता है, राइट। सो सेकेंड एडवांटेजेस है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यस ऑलवेज कोई भी डिसीजन मेकिंग्स होता है उसके बहुत सारे, जैसे एक स्टोरी होती है ना, छोटी स्टोरी, जैसे मैंने बोल दिया हम लोग हमेशा सुनते आए हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कि एक था राजा एक थी रानी, फिर ये वो, तो ये मैंने सिंपल बता दिया कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिलके खत्म कहानी, ये सब। लेकिन अगर मैं चाहूँ एज अ ऑथर तो मैं इस कहानी को बहुत अच्छा इलेबोरेट कर सकती हूँ, है ना, अच्छा लिख सकती हूँ अगर मेरे पास थॉट्स है। और अगर किसी के पास है तो वो बंदा उस पर बुक लिख सकता है। सो डिपेंड ऑन, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिसीजंस भी बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट।
आईटी का अलग होगा, मैनेजमेंट का अलग होगा, एचआर का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, हर एक का अलग अलग होता है पर्सपेक्टिव. सो बट वी लर्न लॉट, राइट. अगर आप जनरल मीटिंग में बैठे हैं, आपको आईटी नहीं आता, आप फाइनेंस के ही है, आपको एचआर पता नहीं, आपको मार्केटिंग पता नहीं, लेकिन अगर आप जनरल मीटिंग में बैठे और अगर ये एस्पेक्ट पे बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी कि यस, है ना. 10 तक तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, व्हाटएवर. तो सभी लोगों को हिस्ट्री तो पसंद आती नहीं है, सभी को ज्योग्राफी तो आती नहीं है ना. तो लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, और फिर हम लोग बताते हैं यार हिस्ट्री तो मुझे कभी आया ही नहीं, मैथ्स अरे नहीं रे बाबा अभी तक नहीं सीखा, कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि जो सब्जेक्ट मेरा वीक है मैं उसमें ज्यादा ध्यान दूं ताकि उसमें भी मैं एक्सपर्ट बन सकूं. नहीं, जरूरत नहीं पड़ी आपको. फिर अभी जब मैनेजर लेवल पे जाते हैं तब आपको हर्ट होता है, यार तब अगर मैंने किया रहता तो आज मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता. राइट. सो बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं. ग्रेटर कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स उसे वार्ड्स करके जब आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में या बड़े बड़े वर्कशॉप ज्वाइन करते हो तो आपको डिटेल में पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या होता है, वो क्या वो सामने वाला बंदा कहना चाह रहा है ना. सो आप ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो आपको डिटेल में A to Z पता होना चाहिए. A to Z उसके कॉस्ट, वो कहाँ से आया, क्यों प्रोजेक्ट लिया, उसका कॉस्ट क्या था, उसमें कितना खर्चा हुआ, इतना मतलब इतना डीप आपको स्टडी करना होता है. मैनेजर बनना नॉट अ जोक. आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सब्जेक्ट है नेक्स्ट लेवल में, जब आप सेकंड थर्ड में जाओगे सेम में. वेरी वास्ट और बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, बट बहुत डिटेल में है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होती है, कब से मिला, ईच एंड एवरीथिंग. आप लोग काफी लोग वर्किंग पे हो तो आपको पता भी है क्या होता है ना, स्पेशली वर्किंग गाइज. सो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को. सिर्फ आप लेक्चर सुनिए मत, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है. इंक्रीज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट करिए कि यस व्हाटएवर जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है या आपका जो भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जब आप डिबेट सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो, व्हाटएवर. सो ऑलवेज इंक्रीज योरसेल्फ. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, कुछ तो भी शेयर करिए इन फ्रंट ऑफ देम. राइट. ट्रेनिंग ग्राउंड. जब ट्रेनिंग होता है तो वहां पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग ग्राउंड पे, है ना. तो वो भी आपको सीखनी है ताकि आप उसे इम्प्रूव कर सके. जब हम मतलब मेरे टाइम पे अभी 14-15 की बात है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने एसएपी लॉन्च किया था कि नहीं अभी हम लोग जो भी वर्क करेंगे वो एसएपी में करेंगे. तो ऑब्वियसली हमें भी ट्रेनिंग दिया गया, हमें भी सिखाया गया, लेकिन वो समझ में नहीं आता ना, क्योंकि एक्सेल तो अच्छा ही था बट शुरू में कुछ आता नहीं है. तो सैंपल तो मैम ने बोला था कि यस एक सैंपल बेसिस पे भी होता है जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि रियली में इनवॉइस होता है कि नहीं, जनरेट होता है कि नहीं, उसके रिपोर्ट्स दिखते हैं कि नहीं. तो हम लोग भी उसमें करते थे, बट उसमें मजा नहीं आता था क्योंकि प्रैक्टिस चल रही थी. तो उसमें रिपोर्ट्स वगैरह इतने पॉजिटिव नहीं आते थे, इफेक्टिव नहीं था उसमें, क्योंकि वो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए था. लेकिन जब हमने रियल में उसमें काम करना स्टार्ट किया, मतलब रियल एसएपी जो होता है ना मॉड्यूल, मेरा तो फाइनेंस था, तो फाइनेंस मॉड्यूल में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बहुत मिस्टेक्स होती थी क्योंकि सीखती थी, मतलब पता ही नहीं था ना क्या होता, क्या हो रहा है, क्या नहीं, बहुत मिस्टेक्स. सो और बहुत डांट भी मिलती थी कि ये मिस्टेक्स हो गई, वो मिस्टेक्स हो गई, ट्रेनिंग दिया उसके बावजूद भी ये हो रहा है. बट मैं शांत रहती थी कि ठीक है पापा सीख रही हूँ ना, तो मिस्टेक तो होगी ही ना, है ना. लेकिन फर्स्ट टाइम ही हो रही है क्योंकि नया है. जब भी कोई नया सिस्टम्स होता है, ट्रेनिंग मिलता है, तो हमसे गलती होती ही है और होनी भी चाहिए क्योंकि हमें सीखने को मिलता है. अगर हम बोलेंगे कि नहीं हमें बताया नहीं, हम करेंगे नहीं, तो फिर आप कुछ नहीं सीखेंगे. गलती करोगे तो ही आगे जाओगे. ओके. सो जो भी आपके ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं, सेशंस होते हैं, उसे भी आप अप्रोच करिए, बट वो भी
बहुत जरूरी होता है। तो रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बड़ी पोजीशन पे जाना है तो रिस्क फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिसएडवांटेज व्हाट इट इज कि सोशल प्रेशर होता है, पीएस वर्क प्रेशर, टीम प्रेशर होता है कि काम करना है। देन माइनॉरिटी डोमिनेशंस भी होता है कि तुमने किया नहीं, क्रिटिसाइज होता है कि तुम्हें ऐसा ही नहीं आता, इतना सा नहीं आता। सो दैट काइंड ऑफ क्रिटिसाइज अराउंड द पीपल, राइट। देन लॉग रोलिंग, आपको गोल गोल घुमाया जाता है कि नहीं ये करो, फिर उसके बाद ये करो, ये इतना ही मिस्टेक्स हुआ है, फिर से करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो चलता ही है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। गोल डिस्प्लेसमेंट, आपने सोचा था आज का गोल रखा था ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, आज हुआ ही नहीं फुलफिल, है ना। तो मतलब ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है ना कि कोई लोग सीरियस लेता है, कोई सीरियस नहीं लेता। जो सीरियस लेता है वो आगे जाता है, जो सीरियस नहीं लेता वो इस तरह के ग्रुप थिंक, बस जस्ट सोचते हैं, अरे उसको क्या बोलना आता है, ऐसा ही जस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ आ गया ये अभी, है ना। हम लोग करते हैं, हमारी आदत होती है, और अभी आपकी तो है ही, है ना। ग्रुप में मुझे पता है आप लोग कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस, कितना अच्छा अच्छा क्रिटिसाइज करते हो, कितना अच्छा अच्छा डोमिनेट, बस अच्छी चीजें डालोगे ना, है ना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, करना चाहिए बिकॉज आपका एज है ये। बट मैंने इतनी बार लोगों को फोन किया, बोला कि बाबा ये टेस्ट दो, तो किसी को ध्यान ही नहीं है, अपने इसमें मस्त, अपने इसमें है ना। सो डोंट डू दिस लाइक दैट, कि अभी आपको डिसिप्लिन सीखना है कि क्या चीज ग्रुप में डालनी चाहिए, किस चीज पे डिस्कस होना चाहिए। गॉट इट। सो दैट इज advantages and disadvantages of group discussions. Anyone want to ask any questions? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yeah. So what you learned from today's lecture? Give me a feedback. Come on. Aniket, are you ready? Yes, ma'am. हाँ. करूँ Then क्या अभी प्रेजेंट? yes, share your PPT and then you just unmute yourself and start it. Okay? Okay, ma'am. Yes. Share your PPT first. एक मिनट मैम। Yes, yes. Yes, guys. Any feedback? किसी को कोई तकलीफ है, कोई बात है जो समझ में नहीं आ रही, ओपनली बोलिए कि मैम हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप स्पीड से पढ़ा रहे हो, स्लो पढ़ाइए, कोई एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। कम ऑन। क्लैरिटी नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है, कम ऑन। बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, इतने स्टूडेंट्स है, 2 या 4 पीपल ने जो पीपीटी दी है, सब लेक्चर समझ में नहीं आया, ऐसा कंसिडर किया जाए, अदर को करना ही नहीं है। क्या हुआ अनिकेत? ओके। मैम पीपीटी दिख रही है क्या? नहीं, अभी पीपीटी नहीं दिख रही बेटा। यस।
Yes. Let's start, Aniket. PPT. We have seen your PPT. Okay, ma'am. Yes. I have present my PPT on leadership. My name is Aniket Mahamuni, and my roll number is 10. So I start my presentation on leadership. First, introduction. A leader takes the lead. He as a leader has personality, courage, clear vision with ambition to success. A good leader encourages the team to perform to their optimum all the times and drives organizational success. वो अपने जो लीडर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा राइट थिंग्स ही सोचता है और वो हमेशा एम्बिशन रहता है, पैशनेट रहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए. सेकंड, डेफिनेशन. The person who leads or commands a group organization. According to Lansdale, leadership is the ability to influence other people. And according to Kunduz and Ordinal, leadership is the ability of a manager to induce subordinate to work with zeal confidence. जो leader होता है वो अपने अंदर एक confidence रखता है कि अपने organization को lead करने के लिए. Second, importance. First, decision making. Decision making is one of the top leadership skill. Successful leadership takes the best decision for the organization in all situation. जो बेस्ट लीडर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट टेक्निक्स ढूंढता है और स्किल्स यूज करता है ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट अच्छा परफॉर्म कर सके इन ऑल सिचुएशन. Second, passion. Leaders are passionate about their vision and influence others with their energy to achieve it. जो लीडर होता है वो अपने वर्क को लेकर पैशनेट होता है, वो अपने उसके अंदर जिद होती है कि अब हमें ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करना है, उसके अंदर विजन होता है एंड वो पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि उसके एम्प्लॉयज के लिए ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो सके. थर्ड, कमिटमेंट. Effective leaders are committed to the success of their organization and its employees. जो हमेशा लीडर होता है वो हमेशा इफेक्टिव होता है और वो कमिट करता है कि हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है. वो वे देता है हमारे एम्प्लॉयज को कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव करें और वो एम्प्लॉयज को वैसे ट्रेन करता है. फोर्थ, इंटीग्रिटी. सक्सेसफुल लीडरशिप टीचर्स द ऑर्गेनाइजेशन इथिकल वैल्यूज. लीडर होता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को कुछ इथिकल वैल्यूज सिखाता है और रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रॉब्लम सक्सेसफुल लीडर्स डू द राइट थिंग्स टू अचीव देयर गोल्स. एंड जो राइट थिंग्स होता है वही वो अचीव करने के लिए ट्राई करता है और वो प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है और वो हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की वे पे रखने की कोशिश करता है. फिफ्थ, confidence. Leaders help subordinates to excel at their work and every aspect of life by expressing confidence in their abilities. Leader के अंदर abilities होती है उसके वर्क को प्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए. वो हमेशा कॉन्फिडेंसली रहता है क्योंकि उसके एम्प्लॉयज को भी कॉन्फिडेंस मिल सके कि हम ये काम कर सकते हैं. Yes. Very good. Very nice. Thank you, ma'am. And thank you everyone for listening me. Good. Very good explanation, Aniket. Anyone wants? Actually, Aniket, your voice is good, pronunciation is good, but try to explain in English, okay? Everything. Okay, ma'am. Yes, anyone want to? Okay. So I'm trying to today or tomorrow share the unit 1 and unit 2 already in website, and unit 3 and unit 4 will share it today or tomorrow. Tomorrow definitely will share it. Okay. Actually, unit 4 is not completed now. So unit 3 and unit 4 will share it
tomorrow. Anyone want to ask any questions, any feedback? कि कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है या ज्यादा स्पीड हो रही है लेक्चर्स में? एनीवन? कुछ है ऐसा जो समझ में नहीं आया? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4? शेयर. Yes, no one want to share? Okay, so see you tomorrow. And those who are not submitted their activity or PPT, whatever, so prepare it and present yourself. Okay, lectures में आप बोलिए मुझे कि हमें present करना है. Definitely I will give a chance 5 minutes and you need to present. इससे क्या होगा पता है आपको? 5 मिनट में PPT प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या बोलना है, ये आपको स्पीड आ जाएगी. सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा. 5 मिनट्स में इतने सारा इलेबोरेट करना नॉट अ जॉब, बट इफ यू आर इन प्रैक्टिस डेफिनेटली यू विल डू इट. ओके, सो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye.